हेलो फ्रेंड्स। तो आज का हमारा जो स्टोरी होने जा रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट स्टोरी होने जा रहा है। तो बने रहिए हमारे साथ। हम उस स्टोरी पे डिस्कस करेंगे जो बॉलीवुड का बादशाह है शाहरुख खान, उनके सक्सेस के पीछे क्या राज है। जैसे आज के दिन भी हम देख सकते हैं कि एक के बाद एक ब्लॉकबस्टर्स दिए जा रहे हैं। पहले पठान आया, फिर जवान आया। मतलब कैसे बॉलीवुड को उन्होंने रिवाइव किया, एक ऐसा हिस्ट्री क्रिएट कर दी उन्होंने बॉलीवुड में। तो उसके पीछे क्या राज है, क्या राज है उसके पीछे, हम उसको डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। एंड उसके साथ साथ एडिशनली हमारा जो मेन एम एंड फोकस है इंग्लिश पे चर्चा करना, वो बहुत अच्छे से हम करेंगे। उसका पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद लाइन बाय लाइन उसको वर्ड बाय वर्ड एक्सप्लेन करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, वीडियो को बिना स्किप के देखें। एंड और एक बार आपका स्वागत है मेरे चैनल जीनियस इंग्लिश टॉक पे। तो चले पहले हम उसको एक बार पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो मेरे साथ पढ़े ताकि आपका भी रीडिंग इम्प्रूव हो जाए। Once upon a time, in the bustling city of Mumbai, lived a young man named Shah Rukh Khan. Shah Rukh had always dreamt of becoming an actor and making a name for himself in the Hindi film industry. Despite facing numerous rejections and setbacks, he never lost hope and continued to chase his dreams with unwavering passion. Born into a middle class family, Shahrukh grew up with limited resources but an abundance of determination. He would spend hours practicing in front of the mirror, imagining himself as the leading hero in his own story. His parents, although skeptical of his choice, supported him wholeheartedly, knowing that nothing would deter their son from pursuing his dreams. One fateful day, while working as an assistant director on a film set, Shahrukh caught the attention of a renowned director. Impressed by his dedication and talent, the director gave him a small role in his upcoming movie. It was a chance of a lifetime for Shahrukh, and he grabbed it with both hands, pouring all his heart and soul into the role. As fate would have it, the movie turned out to be a huge success, and Shah Rukh's performance was widely praised by both critics and audiences. Overnight, he became the talk of the town, and offers started pouring in from all directions. Shah Rukh's perseverance had finally paid off, and he was now on his way to becoming one of the biggest stars of the Indian film industry. With his charismatic charm and impeccable acting skills, Shah Rukh soon became a household name. His movies touched the hearts of millions, and people from all walks of life connected with his on screen characters. But Shah Rukh was much more than an actor. He was a man with a mission to bring positive change in society. He used his fame and influence to support various charitable causes working towards the betterment of underprivileged children and women empowerment. Shah Rukh became a role model not just for his acting but also for his humility and compassion. As the years passed by, Shah Rukh continued to deliver one hit after another, breaking box office records and receiving accolades both nationally and internationally. However, he remained grounded and never forgot his roots. No matter how big a star he became, he always made time for his family and friends, cherishing the love and support they had given him throughout his journey. Shah Rukh Khan's story is not just a tale of success, but a testament to the power of perseverance and the belief that dreams do come true. From humble beginning to becoming the king of Bollywood, Shah Rukh has left an indelible mark on the entertainment industry and in the hearts of his millions of fans. And just like in the movies, Shah Rukh's story continues to inspire generations, reminding everyone that with determination, hard work, and a little bit of magic, anyone can achieve their dreams, no matter how big or impossible
दे मे सीम। तो ये हमारा रीडिंग कंप्लीट हो गया। हमने ट्राई की कि लाउडली एंड धीरे धीरे पढ़ने की, ताकि आप भी समझ जाए कि किस स्टाइल में रीडिंग किया जा सकता है, किस स्टाइल में पढ़ा जा सकता है। क्योंकि अगर सही ढंग से आप पढ़ना जान ले किसी भी स्टोरीज को, तो हाफ अंडरस्टैंडिंग यहाँ मतलब कंप्लीट हो जाएगा। तो आप चले हम उसको लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करने की, समझने की कोशिश करते हैं। बने रहिए हमारे साथ, वीडियो को बिना स्किप के देखें। बहुत इंपॉर्टेंट स्टोरी होने जा रहा है, बहुत फ़ायदा देगा हमारे इंग्लिश लैंग्वेज में। जो इम्प्रूवमेंट हम चाहते हैं उसको मतलब इंक्रीज़ करने के लिए, लैंग्वेज का जो नॉलेज है उसमें एक्सपर्ट बनने के लिए बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। बने रहिए हमारे साथ, बिना टाइम वेस्ट किए हम उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। तो स्टोरी जो है हमारा, हुआ हमने पहले ही बता दी कि वो बॉलीवुड बादशाह, बॉलीवुड का किंग जो है शाहरुख खान, उनके सक्सेस के पीछे क्या राज है, उस बारे में स्टोरी लिखा गया है। तो हमारा मेन एम एंड फोकस वही है कि हम लैंग्वेज को डेवलप करें स्टोरीज के थ्रू। तो हमारा पहला जो लाइन है, वंस अपॉन ए टाइम, एक बार, इन द बस्लिंग सिटी ऑफ मुंबई। बस्लिंग जो होता है एक बिजी सिटी होता है, एक क्राउडेड पीपल होता है, मतलब इतने सारे लोग हैं, नॉइजी है, लोग अपने अपने काम पे बिजी है, बहुत ज़्यादा लोग होता है। ऐसे सिटी को बस्लिंग सिटी कहा जाता है। ठीक है, उच्चारण मतलब ठीक है प्रोनाउंसिएशन नहीं किया जा सकता, तो बस्लिंग भी कहा जाता है। तो उसे आप याद रखिए, बस्लिंग सिटी मतलब ऐसा क्राउडेड सिटी जहाँ हर कोई अपने काम में बिजी है। सिटी ऑफ मुंबई, तो मुंबई तो हम जानते ही है, बस्लिंग सिटी है ही। लिव्ड ए यंग मैन, रहते थे यंग मैन, एक युवा मैन, आदमी रहता था, एक युवक रहता था, नेम्ड क्या था, शाहरुख खान। वो जो शाहरुख खान कहाँ रहता था, मुंबई, बस्लिंग सिटी मुंबई पे रहता था। शाहरुख हैड ऑलवेज ड्रीम्ड ऑफ बिकमिंग, शाहरुख हैड ऑलवेज ड्रीम्ड ऑफ, ऑलवेज, ऑलवेज होता है हर वक्त, ड्रीम का पस्ट या ड्रीम सपना देखता था, ऑफ बिकमिंग होने के लिए, एन एक्टर, एक्टर होने का सपना हर वक्त देखता था शाहरुख ने, एंड मेकिंग एंड बनाने के लिए, नेम फॉर हिमसेल्फ, अपने लिए एक नाम बनाना चाहता था। कहाँ, इन द हिंदी फिल्म इंडस्ट्री, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में अपना एक नाम बनाना चाहता था, हर वक्त ऐसा सपना देखना चाहता था, देखता था, एंड अपना नाम बनाना चाहता था। डिस्पाइट फेसिंग न्यूमरस रिजेक्शंस, यहाँ देखो बहुत अच्छे अच्छे वर्ड मिलेगा हमको। न्यूमरस होता है बड़े संख्या से, प्रचुर परिमाण जिसको कहते हैं, बड़े संख्या से मतलब लार्ज अमाउंट, लार्ज नंबर जो होता है, बड़े संख्या से, बहुत संख्या से। तो फेसिंग सामना करने के बावजूद, डिस्पाइट होता है बावजूद, तो बावजूद बड़े संख्या से जो रिजेक्शन होता है, हम रिजेक्ट होते हैं कभी कभी, तो रिजेक्शन एंड सेटबैक, सेटबैक होता है जो धक्का खाना। आप जिस स्पीड में आगे जाना चाहते हैं पर कभी कभी प्रॉब्लम आपको अटक देता है रास्ते में, उसको कहते हैं सेटबैक, मतलब धक्का खा के अटक जाना। तो यहाँ कहा गया डिस्पाइट फेसिंग, सामना करने के बावजूद, किसके सामना, न्यूमरस रिजेक्शन एंड सेटबैक्स, मतलब बड़े संख्या से धक्का खाने के बाद, रिजेक्शन के बावजूद भी, ही नेवर लॉस्ट, कभी भी नहीं छोड़ा, लॉस्ट मतलब छोड़ देना, नेवर, होप अपने आशा को, कभी भी अपने आशा, दिल में जो आशा है, जो सपना है उसको नहीं छोड़ा, एंड कंटिन्यू टू चेज, एंड कंटिन्यू रखा, मतलब कंटिन्यू रखा, टू चेज मतलब पीछा करना, हिज ड्रीम्स विद अनवेवरिंग पैशन, अनवेवरिंग होता है पूरा दृढ़ पैशन से, दृढ़ जो मनोभाव होता है, अटल मनोभाव जो होता है, उससे चेज करता रहा अपने ड्रीम्स का, मतलब सपने का पीछा करता रहा, सपने का पीछा करता रहा। तो यहाँ से मीनिंग्स क्या उठाया जा सकता है, डिस्पाइट फेसिंग न्यूमरस रिजेक्शन एंड सेटबैक्स, मीन्स क्या है, मतलब बड़े बड़े धक्का एंड रिजेक्शन खाने के बाद भी, रिजेक्शन रिजेक्ट होने के बाद भी, बड़े रूप से बावजूद क्या किया, ही नेवर लॉस्ट होप, कभी भी अपना आशा नहीं छोड़ा, एंड कंटिन्यू टू चेज हिज ड्रीम्स, चेज हिज ड्रीम्स होता है सपने का पीछा करना, विद अनवेवरिंग पैशन, अटल मनोभाव से, दृढ़ मनोभाव से पीछा करता रहा। बॉर्न इनटू ए मिडिल क्लास फैमिली, जानते हैं मिडिल क्लास फैमिली में जन्म हुआ, परिवार में। शाहरुख ग्रीव अप, शाहरुख बड़ा हुआ, विद लिमिटेड रिसोर्सेज, सीमित रिसोर्स था उसके पास, इतना ज़्यादा रिसोर्स नहीं था जब उसका जन्म हुआ था, रिसोर्स बहुत कम था। तो बट एन एबंडेंस, एबंडेंस भी होता है बड़े आकार से, एबंडेंस, डिटर्मिनेशन, उसके पास डिटर्मिनेशन था, वो बहुत डिटरमाइंड था, प्रचुर मात्रा से क्या था, दृढ़ निश्चित था, डिटर्मिनेशन जो होता है पूरा निश्चित था, मैं ये करूँगा, अबंडेंस डिटर्मिनेशन था उसके पास। ही वुड स्पेंड आवर्स, वो क्या करता था, समय बिताता था, ही वुड स्पेंड मतलब समय बिताना, आवर्स घंटे के बाद घंटे समय बिताता था, कहाँ, प्रैक्टिसिंग, प्रैक्टिस करने में, इन फ्रंट ऑफ द मिरर,
अपने आईने के सामने वो क्या करता था? प्रैक्टिस करता था, हर वक़्त समय बिताता था। इमेजिनिंग हिमसेल्फ, अपने आप का कल्पना करता था। इमेजिन कल्पना करना, हिमसेल्फ अपने आप को एज़ द लीडिंग हीरो, क्या कल्पना करता था? करता था कि एज़ द लीडिंग हीरो इन हिज ओन स्टोरी, अपने स्टोरी का एक हीरो ऐसा कल्पना करता था। एंड आईने के सामने, मिरर के सामने हर वक़्त प्रैक्टिस करता था। घंटे भर घंटे प्रैक्टिस करता था। हिज पेरेंट्स, उसके माँ-बाप जो पेरेंट्स हैं, ऑल्दो स्केप्टिकल होता है थोड़ा, डाउट जो होना, संशय होना ऑफ हिज चॉइस, उसके चॉइस में, उसने जो ड्रीम्स चॉइस की है कि मैं एक्टर बनूंगा, एक नाम बनाऊंगा फिल्म इंडस्ट्री में, थोड़ा संशय था उनके मन में कि वो होगा या नहीं, थोड़ा ऐसा डाउट था। इसके बावजूद क्या हुआ? उसको सपोर्ट किया, उसको सपोर्ट किया होल हार्टेडली, पूरे दिल से उसका सपोर्ट किया। नोइंग दैट, क्योंकि वो जानते थे, नोइंग मतलब जानते थे दैट नथिंग वुड डिटर मतलब अटक के रहना, मतलब कोई ऐसा काम करने में रोक लगाना, मतलब ऐसा जानते थे कि नथिंग वुड डिटर, कि कोई भी चीज़ उसको रोक नहीं सकेगा। देयर सन मतलब उनके बेटे को, फ्रॉम परसुइंग हिज ड्रीम्स, उसको सपने को पाने के लिए, सपने को पाने से कोई भी चीज़ उनके बेटे को डिटर नहीं करेगा, मतलब रुक नहीं सकेगा, इसलिए वो सपोर्ट करते थे। वन फेटफुल डे, फेटफुल जो होता है, फेटफुल होता है किस्मत वाला, लेकिन फेटफुल डे कभी कभी भयानक दिन भी कहा जाता है, दुर्भाग्यपूर्ण दिन भी कहा जाता है। एक्चुअली फेटफुल डे वही होता है, एक ऐसा दिन जिसका इफेक्ट फ्यूचर में आता है, लेकिन हम यहाँ देखेंगे कि एक ऐसा दिन आया उसके पास के उसका इफेक्ट, पॉजिटिव इफेक्ट आया उसके मतलब फ्यूचर में। तो वन फेटफुल डे, एक फेटफुल डे में क्या हुआ, दिन में हुआ, वाइल वर्किंग, जब काम कर रहा था एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर, सहायक डायरेक्टर के सहायक रूप से वो काम कर रहा था ऑन ए फिल्म सेट, एक फिल्म सेट के अंदर। शाहरुख ने पकड़ा, कॉट मतलब पकड़ा, द अटेंशन मनोयोग किसका, और फिर रिनाउंड डायरेक्टर, एक रिनाउंड जो प्रसिद्ध होता है, जो नामी दामी बहुत बड़े रिनाउंड डायरेक्टर होता है, बड़े डायरेक्टर का अटेंशन को पकड़ा शाहरुख ने, मतलब बड़े डायरेक्टर ने उसकी तरफ देखा कि कैसा काम कर रहा है। इम्प्रेस्ड बाय हिज डेडिकेशन एंड टैलेंट होता है जब प्रतिभा, डेडिकेशन जो काम की तरफ इतना दृढ़ता से काम करना, इतना लगाव होना, वही डेडिकेशन होता है। तो उस डेडिकेशन को एंड टैलेंट को, अपना जो प्रतिभा को देखकर वो डायरेक्टर क्या हो गया, इम्प्रेस्ड हो गया उससे। द डायरेक्टर गेव हिम, अब डायरेक्टर ने दिया, गेव मतलब दिया, हिम उसको, ए स्मॉल रोल, एक छोटा रोल दिया इन हिज अपकमिंग मूवी, और मूवी डायरेक्टर का एक मूवी आने वाला था, उसमें शाहरुख को एक छोटा रोल दिया। इट वॉज ए चांस ऑफ ए लाइफ टाइम फॉर शाहरुख, तो ये क्या था, एक बहुत बड़ा एक सुयोग था, एक चांस था शाहरुख के लिए अपने लाइफ टाइम में। एंड ही ग्रैब, उसने पकड़ा, एंड ही ग्रैब, उसने पकड़ लिया उस चांस को, इट विथ बोथ हैंड्स, अपने दोनों हाथों से, मतलब मजबूती से पकड़ा उस चांस को। पोर मतलब डालना होता है, ऑल हिज हार्ट एंड सोल इनटू द रोल, वो जो रोल दिया गया डायरेक्टर के द्वारा, उस रोल को उसने होल हार्टेडली, मतलब हार्ट एंड सोल, अपना दिल लगाकर, मन लगाकर उस रोल को अदा किया। उसके बाद क्या हुआ, एज फेट वुड हैव इट, उसके पास क्या था, किस्मत था, तो क्या हो गया, द मूवी टर्न्ड आउट टू बी अ ह्यूज सक्सेस, वो मूवी क्या निकल के आया, बड़ा सक्सेसफुल मूवी निकले, ब्लॉकबस्टर मूवी निकल के आया। एंड शाहरुख परफॉर्मेंस, शाहरुख का जो परफॉर्मेंस था, शाहरुख जो परफॉर्मेंस उसका था, जो अभिनय किया था शाहरुख ने, शाहरुख वाज वाइडली प्रेज्ड, वाइडली बड़े रूप से, मतलब पूरा हर तरफ प्रेज किया गया, उसका प्रशंसा किया गया, विस्तार लाभ से उसका प्रशंसा किया गया, शाहरुख का परफॉर्मेंस का जो अभिनय किया था, बाय बोथ क्रिटिक्स एंड ऑडियंसेस, ऑडियंस के द्वारा प्रशंसा किया गया, क्रिटिक्स के द्वारा भी, जो हमको क्रिटिसाइज करते हैं, हर वक्त हमको बुरे वाले कहते हैं, वह भी शाहरुख का प्रशंसा किया। ओवरनाइट मतलब रातों रात क्या हो गया, ओवरनाइट रातों रात, ही बिकेम द टॉक ऑफ द टाउन, टाउन का टॉक बन गया, मतलब हर तरफ उसका ही चर्चा चल रहा था, टॉक ऑफ द टाउन मतलब उसका चर्चा चलने लगा। एंड ऑफर्स स्टार्टेड पोरिंग इन फ्रॉम ऑल डायरेक्शंस, हर तरफ से क्या रहा था, ऑफर्स आ रहा था, पोरिंग मतलब डाला गया था, डाला जा रहा था उसके तरफ, ऑफर्स एंड ऑफर्स आ रहा था बहुत डायरेक्शन से, हर तरफ से। शाहरुख परसिवियरेंस एंड फाइनली पेड ऑफ, तो शाहरुख का जो काम करने का जो परसिवियरेंस है, दृढ़ता है, जो कठोर रूप से वह काम करता है, अटल रूप से, वो फाइनली पेड ऑफ मतलब उसका मूल्य उसको मिल गया,
उसका कीमत उसको मिल गया। एंड ही वॉज नाउ अब वो क्या है, ऑन हिज वे टू बिकमिंग वन ऑफ द बिगेस्ट स्टार्स ऑफ द इंडियन फिल्म इंडस्ट्री। एंड अब किस रास्ते पे है वो, वन ऑफ द बिगेस्ट स्टार्स बनने के लिए। इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के जो बड़े बड़े स्टार्स हैं, उन स्टार्स के बीच में एक स्टार्स बनने के रास्ते में वो है, बिकमिंग, वो रास्ते में है वन ऑफ द बिगेस्ट स्टार्स। उसके बाद पैराग्राफ में क्या हुआ, विथ हिज करिश्मेटिक चार्म एंड इम्पिकेबल एक्टिंग स्किल्स। इम्पिकेबल होता है जो जिसमें कोई कमी नहीं होता है, विदाउट एनी मिस्टेक नहीं है, अप्रोप्रिएट है, परिपूर्ण है। वो जो एक्टिंग स्किल्स है शाहरुख के पास, जो एक्टिंग करने का जो स्किल है, विद हिज करिश्मेटिक चार्म। एंड करिश्मेटिक होता है, करिश्मेटिक एंड चार्म वही होता है जो आकर्षक एंड आकर्षणीय होता है। आज भी हम जानते हैं वो शाहरुख खान एक करिश्मेटिक एंड चार्म पर्सनैलिटी है, बहुत आकर्षणीय है, आकर्षक है। तो उसकी जो करिश्मेटिक चार्म एंड इम्पिकेबल जो परिपूर्ण जो एक्टिंग स्किल्स है, वो क्या हो गया, शाहरुख सोन बिकेम बहुत जल्दी बिकेम हो गया ए हाउस होल्ड नेम, हर घर का एक नाम हो गया, मतलब घर घर में उसका चर्चा होने लगा। हिज मूवीज, उसके मूवीज ने टच किया द हार्ट्स ऑफ मिलियन के पीपल के दिल को, हार्ट को मतलब टच कर दिया। एंड पीपल फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ कनेक्टेड विथ हिज ऑन स्क्रीन कैरेक्टर्स। एंड हर लेवल के लोग, हर कैटेगरी के लोग क्या हो गए, कनेक्ट हो गए विद हिज ऑन स्क्रीन कैरेक्टर्स। वो जो कैरेक्टर्स स्क्रीन पे दिखा रहा है मतलब उसका फैन बन गए। बट शाहरुख क्या था, वॉज मच मोर देन एन एक्टर। वो एक्टर से और बड़ा था, वो एक्टर से बहुत ज़्यादा था रियल लाइफ में। ही वॉज ए मैन, क्योंकि वो एक ऐसा मैन था विद ए मिशन टू ब्रिंग पॉजिटिव चेंज इन सोसाइटी। क्योंकि उसके अंदर सिर्फ एक्टिंग करने का पैशन नहीं था, उसके पास एक मिशन था कि हम सोसाइटी में, हम समाज में एक पॉजिटिव चेंज ले आए, पॉजिटिव बदलाव ले आए, उसके लिए एक मिशन था। इसलिए शाहरुख वाज मच मोर देन एन एक्टर, एक्टर से भी बड़ा था, बहुत ज़्यादा था। ही यूज्ड हिज फेम एंड इन्फ्लुएंस, उसका जो प्रसिद्धता है एंड जो इन्फ्लुएंस है, जो प्रभाव एंड प्रसिद्धता है, टू सपोर्ट वेरियस चैरिटेबल कॉजेज। जो चैरिटेबल कॉजेज, जो दान करने में ऐसा चैरिटेबल फंड बनाया जाता है, तो उनमें बहुत सारे सपोर्ट किए शाहरुख खान ने। वर्किंग टूवर्ड्स, एंड वर्क करता रहा टूवर्ड्स द बेटरमेंट ऑफ अंडर प्रिविलेज जो होता है, जिनके पास हर तरफ का राइट्स नहीं है, अधिकार नहीं है, मतलब नीचे स्तर का जो लोग हैं उनके पास मनी भी कम है, पैसा भी कम है, उस जैसे लोगों को मतलब बेटरमेंट के लिए, अच्छे करने के लिए वो काम करता रहा, उस जैसे चिल्ड्रन के अच्छे के लिए काम करता रहा। एंड वुमेन एम्पावरमेंट, जो नारी महिला शक्ति जो है उसके साथ उन्होंने काम किया, उसको एम्पावर करने के लिए, महिलाओं को एम्पावर करने के लिए शाहरुख खान ने बहुत काम किया। शाहरुख बिकेम ए रोल मॉडल, शाहरुख क्या बन गया, एक रोल मॉडल बन गया। नॉट जस्ट फॉर हिज एक्टिंग, सिर्फ उसकी एक्टिंग के लिए ही रोल मॉडल नहीं बना, बट ऑल्सो फॉर हिज ह्यूमिलिटी, उसके पास जो ह्यूमिलिटी है, जो विनम्रता है, एंड कंपेशन होता है जो सहानुभूति है, दूसरे लोगों के दुख देखकर जो दुख महसूस करता है, ऐसा सहानुभूति है, इसलिए वो क्या बन गया, एक रोल मॉडल बन गया। उसके बाद है एज द ईयर्स पास्ट, जब साल बीता गया, साल चलता गया, उसके बाद क्या हुआ, शाहरुख कंटिन्यूड टू डिलीवर वन हिट आफ्टर अनदर, एक के बाद एक हिट मूवीज, ब्लॉकबस्टर मूवीज देता गया, ब्रेकिंग बॉक्स ऑफिस के जितने सारे रिकॉर्ड्स है उसको तोड़ के, आज भी हम देख रहे हैं जैसा जितने सारे बॉक्स ऑफिस का रिकॉर्ड्स है वो सब तोड़ के जवान पठान लेके आया, फिर भी और एक लेके आएगा रिकॉर्ड्स। एंड रिसीविंग एक्कोलेट्स होता है मतलब अपने काम के बदले में समाज से या और कोई दूसरे से ऐसा प्रशंसा लेना, प्रशंसा या प्राइज, पुरस्कृत होना, उसको एक्कोलेट्स कहा जाता है। कहाँ से प्रशंसित हुए, बोथ नेशनली एंड इंटरनेशनली, जो राष्ट्रीय एंड अंतर्राष्ट्रीय तौर पर उसको सम्मानित किया गया। हाउएवर ही रिमेन्ड, एंड उसके बाद क्या हुआ, ही रिमेन्ड, वो रहा ग्राउंडेड एंड नेवर फॉरगॉट हिज रूट्स, वो ग्राउंड लेवल पे रहा, वो जो इतना हाई लेवल पे गया है उसके पास क्या नहीं है, रूडनेस बिल्कुल नहीं है, उसके पास इतना ज़्यादा एटीट्यूड नहीं, ग्राउंड लेवल पे रहा एंड अपना रूट्स जो जड़ है उसको याद रखा। फॉरगॉट मतलब नहीं बोला, नेवर फॉरगॉट नहीं बोला, जड़ कहाँ से उठ के आया, मिडिल क्लास फैमिली से, उसका मतलब हमेशा ये मन में रहता है कि हम मिडिल क्लास फैमिली से उठ के आए हैं। उसके बाद है नो मैटर हाउ बिग ए स्टार ही बिकेम, ये कोई मैटर नहीं करता कि वो कितना बड़ा स्टार बन गया, ही ऑलवेज मेड टाइम, ऑलवेज क्या करता है, टाइम निकलता है, फॉर हिज फैमिली, अपने फैमिली के परिवार के लिए, एंड फ्रेंड्स, अपने फ्रेंड्स के लिए, दोस्तों के लिए, चेरिशिंग द लव, एंड चेरिश करता है, प्रशंसा करता है, द लव एंड सपोर्ट, जो लव, जो प्रेम एंड सपोर्ट
एंड सपोर्ट दे हैड गिवन हिम थ्रू आउट हिज जर्नी। उसके जर्नी में उन्होंने जो सपोर्ट किया एंड लव दिया उसको हमेशा याद रखता है, चेरिश करता है उसका। उसके बाद क्या है, शाहरुख खान स्टोरी इज नॉट जस्ट अ टेल ऑफ सक्सेस। शाहरुख खान का जो स्टोरी हम पढ़ रहे हैं ये सिर्फ एक सक्सेस का टेल, एक किस्सा, एक कहानी नहीं है। नॉट जस्ट टेल, किस्सा कहानी ऑफ सक्सेस, ऐसा एक किस्सा कहानी नहीं है, बट ए टेस्टामेंट। बट क्या है, ये एक एग्जाम्पल है, ये एक ऐसा चीज़ है जो दिखाया गया कि मतलब ये ट्रू है, टू द पावर ऑफ परसिवियरेंस एंड द बिलीफ दैट ड्रीम्स डू कम ट्रू के। जो परसिवियरेंस होता है, पावर ऑफ परसिवियरेंस, जो दृढ़ता मतलब कठोर तरह से जो काम करने का शक्ति जो है, एंड जो बिलीफ एंड जो विश्वास होता है, ड्रीम्स, सपनों का, सपना देखने का जो ड्रीम्स होता है, वो सपना सही हो सकता है, उसका एक जीता जाता उदाहरण है, एक टेस्टामेंट है शाहरुख खान। फ्रॉम हम्बल बिगिनिंग्स, शुरुआत कहाँ से हुई? एक हम्बल मतलब बहुत, क्या होता है, बहुत विनम्र, एक मतलब विनम्र एंड क्या होता है, नॉट रूड जो कहा जाता है, उससे शुरुआत हुआ। उसका शुरुआत होने के बाद टू बिकमिंग द किंग, वो कहाँ बन गया, टू बिकमिंग किंग बनने तक, ऑफ द बॉलीवुड का किंग, बॉलीवुड का बादशाह बनने तक शाहरुख हैज़ लेफ्ट, शाहरुख ने बहुत कुछ पीछे छोड़ा है। एन इंडेलिबल मार्क, इंडेलिबल होता है एक ऐसा मार्क, ऐसा चिन्ह, मार्क होता है चिन्ह, इंडेलिबल होता है जिसको मिटाया नहीं जा सकता, मतलब एग्जिस्टेंस रहता ही है, ऐसा एक चिन्ह दिया गया है जिसका मतलब स्थायी है, स्थायी एक चिन्ह, एक मार्क दिया गया है ऑन द एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री एंड इन द हार्ट्स ऑफ हिज मिलियंस ऑफ फैंस, अपने मिलियंस ऑफ फैंस के मन में। एंड इंडस्ट्री, एंटरटेनमेंट, जो एंटरटेन करते हैं हमको, जो इंडस्ट्री मनोरंजन देते हैं, उस इंडस्ट्री में एक ऐसा इंडेलिबल मार्क छोड़ा है शाहरुख ने जो कभी भी नहीं जा सकता, मिटाया नहीं जा सकता। उसके बाद लास्ट पैराग्राफ है, एंड जस्ट लाइक इन द मूवीज, एंड जैसे मूवीज के जैसे ही शाहरुख स्टोरी, शाहरुख खान का जो सक्सेस स्टोरी है, कंटिन्यूस टू इंस्पायर, वो कंटिन्यूसली इंस्पायर करता रहा जनरेशंस को, रिमाइंडिंग एंड याद दिलाता रहा एवरीवन, हर एक को, दैट विद डिटर्मिनेशन, क्या याद दिलाता रहा कि डिटर्मिनेशन के साथ हम जो दृढ़ रूप से काम करते हैं एंड हार्ड वर्क जो करते हैं हम, एंड अ लिटिल बिट ऑफ मैजिक, कुछ मैजिक के साथ, जैसे वो एक चार्मिंग पर्सनालिटी है, कुछ हार्ड वर्क के साथ, डिटर्मिनेशन के साथ एंड मैजिक के साथ अगर हम काम करें तो एनी वन कैन अचीव, कोई भी कैन अचीव, पा सकता है देयर ड्रीम्स, अपने ड्रीम्स को पा सकता है। तो ड्रीम्स को पाने के लिए क्या करना चाहिए? डिटरमाइंड रहना चाहिए, विद डिटर्मिनेशन हमको काम करना है, हार्ड वर्क करना है, एंड लिटिल बिट मैजिक रखना है। नो मैटर हाउ बिग और इम्पॉसिबल दे मे सीम, नो मैटर, ये कोई मैटर नहीं करता कि तुम्हारा ड्रीम कितना बड़ा है एंड कितना इम्पॉसिबल है, वो मैटर नहीं करता, कितना असंभव है कोई मैटर नहीं करता। अगर आप काम करें, हार्ड वर्क करें, डिटरमाइंड रह के काम करें, कंसिस्टेंसी रख के, तो आपका ड्रीम एक दिन ट्रू हो जाएगा, आप भी एक दिन सक्सेस पे पहुंच जाएंगे। तो उसका सक्सेस के पीछे क्या राज है, हमने देखा कैसा वो डिटरमाइंड आदमी था, कैसा काम करता रहा, हार्डवर्क करता रहा, एक के बाद जितना सारा प्रॉब्लम फेस किया, उसके बावजूद भी उसने काम करता रहा। तो ऐसे ही सक्सेस मिला। अगर हम भी ऐसे काम करते रहे, अपने लाइफ में आगे बढ़ते रहे, तो एक दिन सक्सेस ज़रूर आएगा। हमारा जो मिशन है, हमारा जो मतलब काम है, इंग्लिश पे चर्चा करने का, ट्राई की हमने बेस्ट से बेस्ट मतलब समझाने की। तो आप मतलब प्रैक्टिस करें, उसको पढ़ने की प्रैक्टिस करें, जहाँ भी स्टोरीज मिले उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने की कोशिश करें। आप भी डिटरमाइंड रहे सीखने के लिए, उस पर एक्सपर्ट बनने के लिए, तो एक दिन ज़रूर आप भी बन जाएंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना है। सब्सक्राइब क्या करता है, हमको इंस्पायर करता है और अच्छे वीडियो लाने के लिए। एंड ज़रूर हम ट्राई करेंगे उससे बेस्ट वीडियो लाने की। एंड चले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।